Hello everyone. So in this lecture, we will discuss about the microbial nutrition. So topic to be covered is introduction, nutritional requirement, nutritional type of microorganism and some examples. So what is microbial nutrition? Microbial nutrition is the aspect of the microbial physiology, mean external study that deal with the supply of monomer that need for the growth of microorganism. Okay? Collectively, these required substances is known as nutrients. Events that fulfill the requirement of nutrients are known as the nutrition. ठीक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू यूटिलाइज द ऑर्गेनिक as well as the inorganic substances to meet their requirement of nutrition. So all the substances that microorganism required for the synthesis of their cell material and for the generation of ATP molecule are drawn from the environment. ठीक है these substances are called as nutrients. Nutrients जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. ठीक है जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है जो बॉडी में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को मांगते हैं. नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन द सेम अमाउंट. ऐसा नहीं है कि अगर हम मैग्नीशियम कैल्शियम खा रहे हैं तो वो सारे सेम अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं. नो, बिकॉज दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. ठीक है several other elements are also needed in very small amount and are the part of the enzymes and cofactors like macronutrients and micronutrients. जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं और ट्रेसेस एलिमेंट में चाहिए होते हैं. For example, carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, which is a component of the carbohydrate, lipids, proteins, and the nucleic acid, potassium, calcium, magnesium, iron, cation, and a part of enzyme and cofactor. ठीक है, that is a macronutrients. It is a large amount में body को चाहिए होता है. Next one is a micronutrient. ये क्या होता है? Very very small amount में body को चाहिए होता है, like mineral elements such as iron, copper, molybdenum, zinc. They are refers to as a trace element. ठीक है most are essential for the activity of the certain enzyme usually as cofactors. ठीक है जर्नल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट. फॉर एग्जांपल कार्बन. कार्बन एक एलिमेंट है जिसका बॉडी में क्या काम होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सेल मटेरियल. ऑक्सीजन क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेलुलर वाटर, ऑल्सो सर्व एज अ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन. Nitrogen constituents of proteins, nucleic acid and coenzyme. Hydrogen constituents of the cellular water and organic cell material. Phosphorus constituent of the phospholipids and nucleic acid. Sulfur constituent of the amino acid like cysteine and methionine. Potassium important inorganic cation in cell. Sodium important inorganic cation in cell, help in membrane transport. Calcium important inorganic cation in cell and also help in the cell locomotion and movement. Iron constituents of the cytochromes and other heme और नॉन हेम प्रोटीन्स. ठीक है ग्रुप होते हैं. मैग्नीशियम क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कैटायन इन सेल एंड हेल्प इन द ट्रांसलेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स टू प्रोटीन्स. अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनकी जो सेलुलर फंक्शन होता है उसके बारे में. लाइक कोबाल्ट, विटामिन B12, प्रोपेनोइक एसिड बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है. ठीक है एंड कॉपर रेस्पिरेशन में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है, फोटोसिंथेसिस में. ठीक है मैग्नीशियम एक्ट एज द एक्टिवेटर ऑफ वेरियस एंजाइम. मॉलिबेडिनम प्रेजेंट इन द फ्लाविन कंटेनिंग एंजाइम. निकल प्रेजेंट इन हाइड्रोजनेज एंजाइम. सेलेनियम क्या होता है, अमाइनो एसिड सेलेनोसिस्टीन. ठीक है टंगस्टन में ऑक्सी ट्रांसफरेजेस इन हाइपरथर्मोफाइल्स. वेनेडियम नाइट्रोजनेज, जिंक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है. ग्रोथ सेक्टर्स में क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. Organic nutrient of this type is known as a growth factor or essential metabolites and can be categorized into the three groups. Amino acid are needed for protein synthesis. Purine and pyrimidine किसके लिए चाहिए होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए के लिए, लाइक एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल इन डीएनए इन आरएनए केस. वाइटामिन क्या होते हैं, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी को चाहिए होता है स्मॉल अमाउंट में. ठीक है वाइटामिन आर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट यूजुअली मेकअप ऑल or part enzyme cofactors and only very small amount are required for growth. Vitamin B1 help in the ट्रांसकीटोलेज रिएक्शंस. ठीक है ट्रांसकीटोलेज रिएक्शंस के लिए. विटामिन B2 दैट इज अ रेवोफ्लाविन प्रिकर्सर ऑफ FMN and FDA involving electron transport chain ETC. Next one is vitamin B3 niacin, transfer of electrons in reduction in oxidation reduction reaction precursor of NAD. ठीक है
Pantothenic acid, vitamin B5, precursor of coenzyme A. Next one is पेरिडॉक्सिन, विटामिन B6, ठीक है, वो किसके लिए होता है, अमाइनो एसिड एंड कीटो एसिड ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उसके लिए विटामिन B6, विटामिन B7 दैट इज अ बायोटीन इन फैटी एसिड सिंथेसिस, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म, कोबाला साइनोकोबाला अमाइन दैट इज अ विटामिन B12 सिंथेसिस ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, डीएनए के केस में, विटामिन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड इन द सिंथेसिस ऑफ स्पिग्नोलिपिड्स. The microbe can be divided into two groups based upon the carbon source, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं खाने के लिए. फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉफ यूजेस CO2 as their sole or principal source of carbon. Many microorganisms are autotrophic. They synthesize their own food and do not depend upon others. And most of they carry photosynthesis, ठीक है, and uses the light energy and as their energy source, ठीक है. हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस द रिड्यूस परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज कार्बन सोर्सेज आर हेटेरोट्रॉफ. दीज परफॉर्म्ड मॉलिक्यूल नॉर्मली come from the other organism. Nutritional type of microorganism, for example, based upon the carbon source, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs which make their own food, heterotrophs which do not make their own food and depend upon other for food. Next one is based upon the light energy. Phototrophs जो light energy का यूज करें, chemotroph the energy derived from the oxidizing organic और inorganic molecules, ठीक है. Based upon the electron source, lithotroph and organotroph जो reduce करे inorganic substances, that is lithotroph, that is rock eaters, and organotroph electrons from organic compounds, ठीक है. Next one is taking the source of carbon, energy and electron together. The nutritional form of microorganism can be classified as photolithotrophs जो लाइट एनर्जी का यूज करेंगे और उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी एज देयर कार्बन सोर्स, ठीक है. और फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ क्या करेंगे, लाइट का यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स. कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं रिड्यूस जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कार्बन. नेक्स्ट वन इज अ कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ जो यूज द रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय द ऑटोट्रॉफ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन, ठीक है. यही था सारा. सो थैंक यू एवरीवन.